नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अपोजिशन जमातों की तरफ से लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के दौरान हुकूमत ने आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 को मंजूरी दे दी, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टरों की मियाद में 5 साल की तौसीक की गई है। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह से बिल को ऐवान में पेश करने के लिए कहा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने उसकी सख्त मुखालिफत की और कहा कि हुकूमत CBI और ED पर शिकंजा कसकर एजेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश और शशि थरूर ने इस बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास के आगाज से चंद दिन पहले बगैर बहस किए इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस लेकर आई और उसने सबसे पहले यही गलत काम करके पार्लिमानी उसूलों की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत ने डायरेक्टरों की मुद्दत मुलाजमत में हर 2 साल से 5 साल की तौसीक का इंतजाम करके एजेंसियों के डायरेक्टरों को अपने कब्जे में रखने के लिए एक मजबूत इंतजाम किया। कांग्रेस सरकार ने कहा कि उसके जरिए एजेंसी में इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अगर डायरेक्टर हुकूमत के कहने पर काम करते रहे तो उनकी मुद्दत मुलाजिमत में तौसी की जाएगी और अगर वो हुकूमत के खिलाफ काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या हटा दिया जाएगा। इस बिल के जरिए हुकूमत दोनों इदारों के आला हुक्काम पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को कंट्रोल करने की कोशिश ना की जाए ताकि वो शफाफ तरीके से काम करते रहें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने बड़े ध्यान से इस बिल की इंट्रोडक्शन पर जो विरोध के लिए बिंदु उठाए गए सुना। मुझे लगता है इन ब्रीफ द कंक्लूजन्स हैव बीन ड्रॉन इवन बिफोर रीडिंग द बिल। Now you I didn't interrupt, so I no I'm not yielding. You didn't interrupt, I didn't interrupt. So let me see. बार each of these speakers has said that you are leaving a room for extending the tenure, and that is the mala fide. Okay, I'm now speaking your language, and I'm not a law-knowing person, but some of you who are law-knowing and well-versed in law, if you read the Central Vigilance Act, clearly states a director of enforcement shall continue to hold office for a period of not less than 2 years. It has never laid the limit of 2 years, which is being extended. Rather, we are streamlining it by limiting it to 5 years. So now let me. Now, secondly. No, I didn't interrupt. So no. Now you have to see, if you have been able to misinterpret the clause, it's not my fault. Then now the point is, you said extension will become routine. I thought I will raise these points in the course of discussion. During the past government, there have been occasions when the director, either ED or director CBI, was given extension without going through the process which is laid down in this act, which we are doing now. Yes. I'll give you the names also, if required. But I thought we will talk in detail during the discussion. Third, it is being said, what is the connection with the international angle? There is precisely a connection with the international angle. The entire format of criminology has changed in the recent years. New methodologies, new technologies, and huge international ramifications. No, I'm just responding to that. So I think I wish that you go through the contents and give it a fair thought. It is not confusing, as was being mentioned by Adhir. It looks confusing because we have not actually had enough time to deliberate on the motion. आप बोलते रहो माननीय। I will give you a number of such observations. Rather, extensions were happening
I'm not going to name the officers today. If pressed, I'll name them. I have the entire list with me in the course of discussion. With the year. Because we'll talk in the discussion, no? This is introduction. This is introduction. करेंगे ना, फिर उस बार क्या बात करेंगे? सारी बात आज ही होगी तो discussion क्या करेंगे? Because you are going to repeat what you said today in the discussion. I will not. I will go beyond this. We are rather streamlining this. Yes. So that is one part. And then saying के ordinance क्यों आया? क्षमा कीजिए, जिस तरह से पिछले सत्र में हाउस चला है, चला नहीं चला, चलेगा नहीं चलेगा, तो क्या सरकार काम करना बंद कर देगी? ये तो इंसिडेंटली टुडे यू हैव हैड द पेशेंस टू बेयर. नहीं तो यहाँ हाउस ही नहीं चलता. जब हाउस ही नहीं चलता है तो क्या करे सरकार? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए. बाकी के बिंदु हम चर्चा में करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 के प्रेक्षापट द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विख्यातात्मक विवरण भी सभा पटल पर रखता हूं. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज तकरीबन 500 उन किसानों की फेहरिस्त मीडिया के सामने रख दी जो किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए. साथ ही उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत से अपील की कि अब वो उन्हें मुआवजा दें. शहीद किसानों की फेहरिस्त राहुल गांधी ने जुमे के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की. उन्होंने कहा कि मेरे पास 403 किसानों की फेहरिस्त है जो किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए. पंजाब हुकूमत ने उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और 152 लोगों को मुलाजिमत भी दी गई. मोदी हुकूमत ये फहरिस्त ले सकती है और इसमें मोबाइल नंबर भी मौजूद है, वो फोन करके तस्दीक कर सकते हैं. राहुल गांधी ने पंजाब के 403 किसान शहीदों के अलावा तकरीबन 100 लोगों की मजीद एक फहरिस्त मीडिया के सामने रखी जो दीगर रियासतों से ताल्लुक रखते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अवामी तौर पर मौजूद जानकारियों को जमा किया जाए तो बाकी शहीद किसानों की भी तफसील मिल जाएगी. लेकिन जिस तरह से मोदी हुकूमत मना कर रही है कि उसे शहीद किसानों की जानकारी नहीं है, वो गलत है. राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में जब सवाल किया गया कि 700 किसान शहीदों के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए तो कह दिया गया कि उसकी तफसील मौजूद नहीं है. हालांकि सच तो यह है कि मोदी हुकूमत कुछ अमीर सनतकारों के लिए तो कुछ भी करती है, लेकिन जब गरीबों और मजदूरों की बात आती है तो पीछे हट जाती है. अंग्रेजी कर देते. Question was asked in Parliament as to whether the government is going to compensate 700 farmers who passed away, who were martyred. And government answered that we have no record of any of these people. We have no record of these 700 people. As it turns out, we did some homework and we have 403 people who the government of Punjab has compensated 5 lakh rupees each and has given jobs to. 100 and how many people are given jobs? 152 have been given a job. We also have another list, which is this one, where we have 100 names of other people not in Punjab from other states, and there is a third list which is public information of names, addresses, phone numbers, which can easily be verified. So this list exists, but the government insists on saying that such a list does not exist. What is the purpose? These people have died as a result of the agitation. We are not talking about billions of dollars, thousands of crores of rupees. We are talking about minimum compensation for the sacrifice they have made. Prime Minister himself has said that he has made a mistake. He has apologized to the nation. Well, as a result of that mistake, 700 people have died. Now you are lying about their names. Why? Why don't you have the decency to give them what is their due? The government of India should pay their compensation and help these families. Thank you, sir. We'll begin with ANI, Siddharth.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लेन देन और बैंकिंग निज़ाम से उसमें आई तब्दीलियों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे आगे है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मालियाती टेक्नोलॉजी के कायदाना फोरम इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि करेंसी की तारीख में जबरदस्त इर्तिखा देखने को मिला है। वज़ीर आज़म ने बताया कि पिछले साल हिंदुस्तान में पहली बार एटीएम से नकद पैसे निकालने के मुकाबले मोबाइल से ज्यादा अदायगियां की गई। मुकम्मल तौर पर डिजिटल बैंक जिनका कोई फिजिकल ब्रांच ऑफिस नहीं है पहले ही एक हकीकत बन चुके हैं और उनमें से कुछ बैंक एक दहाई से भी कम अरसे में अवामी मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह इंसानों का इर्तिका हुआ है उसी तरह हमारी लेन देन की शक्लों का भी इर्तिका हुआ है। बार्टर सिस्टम यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान का लेन देन से लेकर धात तक, सिक्कों से लेकर नोट तक, चेक से लेकर कार्ड तक, आज हम यहां पहुंचे हैं। Financial inclusion is the driver of fintech revolution. Fintech is resting on four pillars: income, investments, insurance, and institutional credit. When income grows, investment becomes possible. Insurance coverage enables greater risk-taking ability and investments. Institutional credit gives wings for expansion, and we have worked on each of these pillars. When all those factors come together, you suddenly find so many more people participating in the financial sector. The large wage becomes the perfect springboard for fintech innovations. Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now, it is time to convert these fintech initiatives into fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. Financial inclusion. बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने आज कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया बहरे हिंद में चीन की हर सरगर्मी पर गहरी नजर रखे हुए है और कोविड चैलेंज के बावजूद मुल्क के समंदरी मफादात के तमाम मनफी हालात में महदूद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यौम बहरिया के मौके पर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडमिरल हरी कुमार, जिन्होंने 3 रोज कबल बहरिया की बागडोर संभाली थी, कहा कि बहरिया को तीनों सर्विसेज के इंतजाम और मुल्क को दिफाई शोबे में खुद मुख्तार बनाने के लिए चलाई जा रही हुकूमत की तमाम स्कीमों की भरपूर हिमायत कर रही है और उनमें जितना मुमकिन हो सके ताउन कर रही है। एडमिरल ने कहा कि उनकी क़यादत में बहरिया का नज़्बुल-ऐन शिप्स फर्स्ट होगा क्योंकि हमारे जंगी जहाज और उन पर तैनात अफरादी क़ुव्वत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह फ़िज़ाइया का नारा एयरक्राफ्ट फर्स्ट है, इसी तरह बहरिया का नारा बहरिया की आबदोद से मुतालिक इंटेलिजेंस के अफशा होने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मकामी एजेंसी और बहरिया की जानिब से उसकी तहकीकात की जा रही हैं। I told you that I want to take forward the legacy of my predecessors. The theme of Indian Navy, a combat ready, credible and cohesive force is what we will be taking forward. Now, in this regard, my approach is of ships first. Why ships? Because the Navy symbolizes ships. Just like aircraft represents the Air Force, the Navy is symbolized by ship. And the word ship is very important for us. If you look at the usage of the word ship, it is quite interesting. When we pray to God, it is worship. When we study, you have scholarship, sportsmanship, apprenticeship, internship. We are all citizens of India. There is citizenship.
as far as media is concerned, you are concerned about viewership, readership. So you have shift there also. As we grow, we enter into relationship. राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकज की मोदी हुकूमत पर महंगाई, किसानों समेत अहले वतन की कोई परवाह ना करने और तकब्बुर में रहने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि साल 2024 के इंतखाबात में उसका गुरूर चुकनाचूर हो जाएगा। गहलोत ने आज जयपुर में विद्यानगर स्टेडियम पहुंचकर मुजवजा कांग्रेस रैली के मुकाम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तो मुल्क के बाशिंदों की नहीं सुन रही है और इसे उनकी कोई परवाह नहीं है। वो गुरूर में मर रही है। आने वाले वक्त में अवाम उसे सबक सिखाएंगी। सोनिया जी, राहुल गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं। राहुल जी, सोनिया जी ने सोच समझ करके जब दिल्ली के अंदर राजनीति चली और रैली जो राष्ट्रीय रैली थी, राष्ट्रीय रैली को इस प्रकार से परमिशन नहीं देना अनफॉर्चुनेट है। मुद्दा पूरे मुल्क में बना हुआ महंगाई का, ऐसे वक्त में अगर पूरे देशवासी भावनाओं को रिप्रेजेंट करती रैली महंगाई को लेके, तो क्या कारण था उन्होंने उसको मना कर दिया। हम सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने रास्ता को चुना है जयपुर को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान से लोग आएंगे बड़ी संख्या में, पूरे मुल्क से लोग आएंगे। बहुत कामयाब रैली हो। परिवार से जुड़ रहा है, तो कुछ घबराहट तो रही होगी केंद्र सरकार में जो मना कर दिया। केंद्र सरकार तो सुनवाई कर नहीं देशवासियों की, चाहे महंगाई हो आम आदमी के लिए, चाहे किसान हो, कोई परवाह नहीं कर रहे हो। वो तो अहम घमंड में मर रहे हैं और जनता आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी। 2024 में ये घमंड चूर होगा। बिल्कुल होगा। घमंड और अहम किसी का काम नहीं आता है। डेमोक्रेसी के अंदर आपको बिंदु रहना पड़ता है। एक्ट्रेस कंगना रनावत की कार को जुमे के रोज पंजाब में नाराज भीड़ ने घेर लिया। भीड़ कंगना के किसानों को खालिस्तानी दहशतगर्द कहने और सिख मुखालिफ बयानों से नाराज थी। पहले यह घेराव चंडीगढ़ उन्ना नेशनल हाईवे पर कीरतपुर साहिब में किया गया। भीड़ के गुस्से को देखकर कंगना गाड़ी से बाहर निकली और माफी मांगी। इसके बाद रोपर टोल प्लाजा पर भी उनकी मुखालिफत में किसानों की भीड़ जमा हो गई। यहां पुलिस ने उनके काफिले को 200 मीटर पहले ही मेरिंडा के गांव के अंदर मोड़ दिया। गांव के अंदर से ही उनका काफिला भीड़ से अलग निकलकर दोबारा हाईवे पर लाया गया। कंगना मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी। कंगना ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इसे मॉब लिंचिंग करार दिया। कंगना ने सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो शेयर किया। कंगना ने कहा कि जैसे ही पंजाब में मैंने कदम रखा, भीड़ ने हमला कर दिया। ये लोग कह रहे हैं कि वो किसान है। कंगना ने कहा कि ये मुझे गालियां दे रहे हैं। सिक्योरिटी होने के बाद भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। पुलिस होने के बावजूद मुझे रोका गया। कंगना के मुताबिक भीड़ उनसे माफी मांगने के लिए कह रही थी। भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ सरेआम मॉब लिंचिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि वो कोई कायद नहीं है और ना ही कोई पार्टी चलाती है। करीब 1 घंटे तक भीड़ ने कंगना को घेरे रखा। कंगना ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वो भीड़ में मौजूद खवातीन से बातचीत करती नजर आ रही हैं। कंगना उनसे कह रही कि मैंने आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मैंने शाहीन बाग की औरतों के लिए कहा था। गौरतलब है कि खवातीन कंगना के उस बयान से खफा हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान तहरीक में लाई गई खवातीन 100 रुपये में लाई गई। कंगना को भीड़ ने काफी जद्दोजहद के बाद जाने दिया। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पूरी तरह से मॉब ने
दहशतगर्द तंजीम आईसिस ने कश्मीर के राजौरी में 2 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को गोली मारने की जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी लेने के लिए आईसिस ने एक खौफनाक वीडियो जारी किया है। 20 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि जवान गाड़ियों से भरी सड़क पर ट्रैफिक संभाल रहा है। इस दौरान हाथ में पिस्टल लिए पीछे से एक दहशतगर्द आता है और उसके सिर में गोली मार देता है। इससे जवान सड़क पर गिर जाता है। तब दहशतगर्द दूसरा फायर करता है। फायरिंग करते हुए दहशतगर्द मजहबी नारे भी लगाता है। यह वीडियो हमलावर ने खुद ही शूट किया। यह हमला चाशुम्बे के रोज राजौरी के कदल एरिया में हुआ था। अब आईसिस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जवान की हालत अभी भी तशवीशनाक है और वो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में जेरे इलाज है। बताया जाता है कि इस हमले में जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था उसी से अक्टूबर में गैर कश्मीरी स्ट्रीट वेंडर का कत्ल किया गया था। अब बात ओमिक्रॉन की। फ्रांस में ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद 8 तक पहुंच गई है। फ्रांस की हेल्थ एजेंसी ने ये जानकारी दी है। वहां ओमिक्रॉन का पहला मामला मंगल के रोज मिला था। 50 साल का वो मुतासिर नाइजीरिया से लौटा था। अगले दिन चाशुमे को फ्रांस की हुकूमत के तर्जुमान गैब्रियल अटल ने बताया था कि मुल्क में 13 मुश्तबा मामलों की पहचान की गई है। वहीं मलेशिया में ओमिक्रॉन का पहला मुतासिर मिला है। 19 नवंबर को सिंगापुर के रास्ते मलेशिया पहुंचा कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एशिया में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। मलेशिया के हेल्थ मिनिस्टर खैरी जमालुद्दीन ने बताया कि मुल्क में ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज किया गया। साउथ अफ्रीका के एक बैरूनी मुसाफिर में नया वेरिएंट पाया गया। ये मुसाफिर 19 नवंबर को सिंगापुर के रास्ते मलेशिया पहुंचा था। वहीं ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। बोरिस ने वीडियो शेयर किया जिसमें वो बूस्टर डोज लगवाते हुए दिख रहे हैं। बोरिस ने कहा कि आप सभी अपनी बारी आने पर बाद में जब भी बारी आपकी आई बूस्टर डोज लगवा लें। हमें वायरस को दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। Their boosters and we're ordering another 140 million doses of both Pfizer and Moderna. It's the right thing to do for you, for your family. So when your time comes, please come forward and get your booster. Let's do another great British vaccination effort and not give the virus a second chance. अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग सियासी तकसीम का सबब नहीं बननी चाहिए। उन्होंने एक ऐसा मंसूबा पेश किया जो मौसम सरमा के आगाज के साथ इन्फेक्शन में इजाफे और कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के फैलाव को रोकेगा। अपनी तकरीर में बाइडेन ने कहा कि मैं जानता हूं कि कोविड-19 ने मुल्क को तकसीम कर दिया है। ये एक धड़ाबंदी का मसला बन गया है जो बदकिस्मती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जब हम सर्दियों में जा रहे हैं और कोरोना की नई तब्दील शुदा शक्ल का चैलेंज का सामना कर रहे हैं, ये वक्त है कि हम उन तकसीमों को ख़त्म करने की कोशिश करें। बाइडेन निजी और सरकारी इदारों में कारकुनों पर लाजमी वैक्सीनेशन मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत से रिपब्लिकन्स की तरफ से सख्त मुखालिफत का सामना है और वो पाबंदियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में रुकावट है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि उनका कोरोना से लड़ने का मंसूबा जामे होना चाहिए। इसमें नए इक़दामात या पाबंदियां नहीं होंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के पास ओमाइक्रॉन का मुकाबला करने की बेहतरीन सलाहियत है। वो वैक्सीन के जरिए इस वबा का मुकाबला करना चाहते हैं, इजाफी इक़दामात नहीं करेंगे। If you are vaccinated but still worried about the new variant, get your booster. If you aren't vaccinated, get that shot. Go get that first shot. If you are vaccinated. कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की हिंदुस्तान में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में जुमेरात के रोज इसके 2 मामले सामने आए हैं। इधर राजस्थान में भी तशवीश बढ़ गई है। रियासत में 7 दिन पहले साउथ अफ्रीका से जयपुर आए एक खानदान के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक कपल समेत उनके 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 8 और 15 साल है। ये पॉजिटिव मिले हैं। सभी को ओमिक्रॉन का मुश्तबा मानते हुए क्वारंटाइन किया गया है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए उनके सैंपल लिए गए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट से मुंबई आए 9 बैरूनी शहरियों समेत 10 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट जुमे के रोज कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मुश्तबा मुतासरीन की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। ये सभी 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमे के रोज
दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 मुश्तबा मरीज भर्ती किए गए हैं। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि कोविड पॉजिटिव 28 लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी तशवीश के बीच घरेलू हवाई मुसाफिरीन के लिए अलग से डायरेक्शंस इशू किए जाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच हिंदुस्तान में भी बूस्टर डोज लगाए जाने की तजवीज रखी गई है। टॉप जीनोम साइंटिस्ट ने कहा है कि 40 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए। इसमें फोकस उन लोगों पर रखा जाए जिन्हें ज्यादा खतरा है। इंडियन SARS-CoV-2 जेनेटिक कंसोर्शियम यानी इंसैकॉग के बुलेटिन में बूस्टर डोज की सिफारिश की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के माइक्रोवायरोलॉजी डिपार्टमेंट के साबिक HOD प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिन लोगों को सेकेंड डोज लिए 6 से 9 महीने हो गए हैं उन्हें बूस्टर डोज देना चाहिए, क्योंकि 6 से 9 महीने में एंटीबॉडी फॉल पर होती है। यही वजह है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं उसका भी 1 साल में डोज दिया जाता है। मुल्क में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आने के बाद उसके अलामात और पहचान पर बहस शुरू हो गई है। साउथ अफ्रीकी हुकूमत को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अलर्ट करने वाली अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन की सदरनशीन एंजेलिक क्वेटजी ने इस पर जानकारी दी। उनके मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासिर शख्स के अलामात डेल्टा वेरिएंट से अलग और हल्के हैं। ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए लोगों को बदन दर्द, तेज सिर दर्द और थकान की शिकायत होती है। किसी में सूंघने और चखने की सलाहियत चले जाना, नाक बंद होना या बुखार की शिकायत नहीं देखी गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट RT-PCR जांच में पकड़ा जाता है। हम आपको पहले कोरोना के कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया है। पिछले 24 घंटों में 6,34,483 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी दौरान 7,563 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26,46,22,345 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 52,53,446 हो गई। दुनिया भर में एक्टिव केसेस यानी वो लोग जो कोरोना का अभी इलाज करा रहे हैं उनकी तादाद 2,07,28,963 हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना की सूरत हाल फिर से खराब होती नजर आ रही है। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान न सिर्फ एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ बल्कि सेहतियाब होने वाले मरीजों के मुकाबले में नए केसेस में भी इजाफा देखा गया। जुमे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 213 के इजाफे के साथ बढ़कर 99,976 हो गई। कोरोना इन्फेक्शन के 9,216 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की कुल तादाद 3,46,15,757 हो गई। जुमेरात की ताखिर शब तक 8,612 मरीजों के सेहतियाब होने के बाद वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 3,40,45,666 हो गई। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों में 391 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,70,115 हो गई। आखिर में बात करते हैं मैच की। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 4 विकेट खोकर 221 रन बना लिए। ओपनर मयंक अग्रवाल 120 और विकेट कीपर बल्लेबाज वृंदावन साहा 25 रन बनाकर नॉट आउट है। न्यूजीलैंड के लिए चारों विकेट एजाज पटेल के खाते में आए। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए हिंदुस्तान ने अपने पहले 4 विकेट सिर्फ 160 रन के स्कोर पर गंवा दिए। 5वें विकेट के लिए अभी तक मयंक और साहा के बीच 134 बॉल्स पर 61 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। मयंक अग्रवाल ने 196 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर का चौथा शतक यानी सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 13 सेशंस के बाद 13 पारियों के बाद एक सेंचुरी लगाई है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।